वक्त कलाम पाक की तिलावत के लिए लड़की आई। There is no God but Allah, and He is the knower of the unseen and the visible, and He is the merciful beneficent. वही अल्लाह है जिनके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, हर ऐब से पाक है, सलामती अता करने वाला और अमन बख्शने वाला है, निगहबान है, गालिब है, खुद मुख्तार और बड़ी अजमतों वाला है। अल्लाह की जात उन लोगों के लिए शरीक ठहराने से पाक है। There is no God but Allah. He is the King to whom belong these attributes: the Holy, the Bestower of wealth, the Bestower of security, the Guardian of the creatures, the Supreme Mighty, the owner of this celestial kingdom and grandeur. To Him belongs the absolute purity, and He is above having any partner. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। तुझको वही मेरा ज़माना दे दे, कब मैं कहता हूँ मुझे ताज शहाना दे दे। मेरे अल्लाह मैं क्या मांगू यही काफी है। मेरे अल्लाह मैं क्या मांगू यही काफी है। दर्द देकर मुझे रोने का बहाना दे दे। ऐ इलाह मुझको वही मेरा ज़माना दे दे। गैर के दर पर मैं क्यों जाऊं सवाली बनकर। गैर के दर पर मैं क्यों जाऊं सवाली बनकर। अपनी दहलीज पे मरने का ठिकाना दे दे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे
nation. I feel immensely honored to having been given an opportunity to address you all on such a significant occasion and express my views. Honorable dignitaries, heads, madams, teachers, and my dear friends, good morning to everyone. As you all know, India got independence on 15th of August in 1947 from the British rule. After independence, we got all the fundamental rights in our own nation, our motherland. We all should feel proud to be an Indian and admire our fortune that which is born on the land of independence. Assalamu alaikum to one and all. My name is Sana Fatma from 7th Standard B section. Today I am going to speak a few words on our Independence Day. At first, I would like to wish you a very happy Independence Day. Friends, as we all know about the 15th August is a day of honor and right for every Indian. In this day, in 1947, the India got freedom from the British rule. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and many others devoted their whole life for the freedom of our country. Today, we are developing rapidly in the field of technology, education, sports and many others which could not possible without freedom. So, it is our duty to work hard for our country's development and progress. Let's all pledge today. We can make our country a best country in the world. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Sheikh Falak, నేను 4వ తరగతి ఏ సెక్షన్లో చదువుతున్నాను. గౌరవనీయులైన సెక్రటరీ గారికి, ప్రెసిడెంట్ గారికి, అతిథులకు, హెచ్ఎంఏలకు, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ముందుగా అందరికీ 77వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే నాకు ఈ పర్వదినాన ఉపన్యాసం ఇచ్చేందుకు అనుమతించినందుకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మొదట వ్యాపార నిమిత్తం భారతదేశంలోకి అడుగుపెట్టిన బ్రిటిష్ దేశస్థులు క్రమంగా మన దేశాన్ని వారి అధీనంలోకి తెచ్చుకుని వారి బానిసలుగా చేసుకున్నారు. ఎందరో స్వాతంత్ర సమరయోధులు త్యాగఫలమే మనకు 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీ స్వాతంత్ర్యం లభించింది. మన దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. మన దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అడుగుపెట్టిన బ్రిటిష్ దేశస్థులు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన శకటాలు ఆయా రాష్ట్రాల పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తుంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల తరపున వ్యవసాయ కళలకు సంబంధించిన శకటాలను ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారు. నా ప్రియ భారతీయులారా, ఎంతటి స్వేచ్ఛనిచ్చిన మన స్వాతంత్ర సమరయోధుల
करने वाले हैं वो उन फौजियों के नाम है जो इस देश की मिट्टी पर अपनी जान गंवाए। और आज ना तेरी सांसों पे थोड़ा सा बदन का भी हक था, ना देखूं मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथी अभी तक था। ये तेरी ज़मीं मैंने खुद से ही तो सज के कर दी है रांझ, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी ही गुजरती है रांझे। तेरी मिट्टी मैं दिल जावा बन के, मैं दिल जावा इतनी सी है की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है की आरज़ू। నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు ముందుగా 77వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు అంటే ఆగస్టు 15 మనకు స్వేచ్ఛ లభించిన రోజు. 1947 ఆగస్టు 15న మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన కారణంగా ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. స్వాతంత్రం అనేది ఎంతో మంది వీరులు వారి ప్రాణ త్యాగాల ఫలితమే. భారతదేశం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన నుండి విముక్తి పొందింది. దాదాపు 200 ఏళ్ల బ్రిటిష్ పరిపాలనలో మగ్గిపోయి యావత్ భారతవాన్ని పోరాటాలు త్యాగాలు చేసి స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చారు. ఇందులో ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, భగత్ సింగ్, అల్లూరి సీతారామరాజు ఇలా ఎంతో మంది పాల్గొన్నారు. सदर साहब, सेक्रेटरी सर, इज्जतमाब मेहमान खुसूसी, सदर मुअल्लिमात, असातिज़ा इकराम, हाबिल फख्र सामाईन और मेरे प्यारे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को यौम आज़ादी मुबारक हो। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आज यौम आज़ादी के इस खूबसूरत मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया गया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हुई अपनी तकरीर को एक शेर के साथ पेश करना चाहती हूँ। चमन अपना वतन अपना ज़मीं व आसमां अपना, चमन अपना वतन अपना ज़मीं व आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म व सितम करते थे। हर काम उनके हुक्म के मुताबिक करना पड़ता था। भारत से अंग्रेजों का हुकूमत को खत्म करने के लिए मुसलसल जिदोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1927 को आजाद हुआ। आजादी वो चीज नहीं जो मिल जाए आसानी से, आजादी वो चीज नहीं जो मिल जाए आसानी से, हासिल होती है निम्मत, हिम्मत और कुर्बानी से। मेरी
చెబుతున్నాను. ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలను మీతో చెప్పుకోవాలని మీ ముందుకు వచ్చాను. నా పేరు ససిహా. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రానికి పూర్వము బ్రిటిష్ వారు మన దేశానికి వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చి మన దేశంలోని రాజులు, మహారాజులు, చక్రవర్తుల పరిపాలనపై వారి అధికారంలోకి తీసుకోగలిగారు. వారు విభజించు పాలించు అనే మాటలతో మన దేశంలోని భారతీయులను అనేక पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी खतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई की कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई की कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा। Honorable dignitaries on the dais, Principal Madam, HM Madam, teachers, and my dear juniors and my friends. Assalamu alaikum to everyone. I am Dawsi Amina Khan. I am from Senior Empathy. First of all, I am very happy to have this opportunity to express my views on this auspicious occasion. Today we all are gathered here to celebrate our 77th Independence Day of India. Just 27 years ago, we got independence from the British and the British rule. From the British and the British rule. The struggle behind this free India is very big, which cannot be described just in a day and just in a knot. But still, some of my juniors and my friends have tried their best to make us remember those struggles. I don't want to repeat all those things. I want to say only one thing, and that is the sacrifices which our great freedom fighters have made to make our country free from the British. Why can't we make our contribution to make our country feel proud of us? We have to make our country develop. As we know that our country is still developing. It is the responsibility of a citizen and the young youths to make our country develop. I hope that you will make your contribution to make your country develop. I don't want to take no more time. I will end up my speech with a small quotation. आजादी की शाम कभी होने नहीं देंगे, आजादी की शाम कभी होने नहीं देंगे, अपने इस देश के झंडे को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। Respected dignitaries on the dais, Principal Ma'am, HM Ma'am, teachers, and my legal sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very beautiful morning to everybody present here. Myself, Sayyid Sufyan Muskan, and I am a student of CFIPC from Hazrat Aisha Junior College. I am very glad to have this golden opportunity to speak up my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. So here, I want to present a few lines about this day. So I would like to start by wishing you all a very happy Independence Day.
history. It could be not wrong if I say that it is the birthday of new and free India. So I'm going to put up now by saying these small lines. दो सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दो सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद। Respected principal ma'am, dear teacher, respected teachers and management faculty, etc. I hope everyone is staying over here. It's a matter of pride for me to be here, and firstly I would like to thank my principal ma'am for giving me this priceless chance. So what's today? Yes, it's Independence Day. It's been 77 years since we got independence. Okay, for a few minutes, let's think about before 77 years in 1947, what have our freedom fighters been thinking? They thought they won. They might be thinking there will be no cash feeling right now, and they also want our country to be developed and all. Our future generation can enjoy freedom. They can travel in any type of vehicle they want. They can do this, they can do that and all. They thought we can utilize it in a better way. Are we utilizing it? Can anyone stand up and tell me, are we utilizing it in a better way? We are not. That's right. We are not utilizing it in a better way. I hope we all can make a wonderful. सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। मैं आज आप सबको भारतीय स्वतंत्रता में भारतीय महिलाओं के योगदान के बारे में चंद शब्द कहना चाहती हूँ। आज यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों के अधीन था। फिर कई सालों बाद भारतीयों में आजादी और स्वदेश की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए कई संघर्ष हुए, जिसमें बहुत से महापुरुषों ने अपना जीवन त्याग दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। भारतीय संघर्ष में भारतीय पुरुषों और महिलाओं ने समान रूप से भाग लिया। भारतीय महिलाओं का योगदान इस आंदोलन में इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनका सामाजिक उत्थान हुए अभी लंबा समय व्यतीत नहीं हुआ था। घर का मोर्चा हो या राजनीति का नामशेष, महिलाओं ने जिस साहस, वीरता से और भूमिका निभाई है वो इतिहास की धरोहर है। सन 1857 जो हमारे देश के इतिहास का पहला संग्राम कहलाता है, वो एक ऐसा विस्फोट था जिसकी नायक एक महिला थी, जिन्होंने अद्भुत वीरता, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया। वो वीरांगना थी झांसी लक्ष्मीबाई। स्वयं अंग्रेज शासक भी उनकी प्रशंसा के बगैर नहीं रह सके। सर ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत पराक्रम से चकित होकर कहा कि सैनिक विद्रोह के नेताओं में लक्ष्मीबाई सबसे सर्वाधिक बहादुर
present here. With a special mention to our Honorable President Sir, Vice President Sir, Secretary Sir, and the Chief Guest, my dear colleagues, respected mentions, and all my dear lovely students. Good morning to one and all. Yes, we are gathered here for. Yes, of course, we all know about this. But I asked these questions for the small kids. But they are also very interesting to participate in this auspicious occasion, right? Yes. I'm sure we will agree to the fact that we hold this August 15, that is, we hold a special place in our hearts. And we are eagerly awaiting this day. Don't we? Yes. We are eagerly waiting this day? Yes. Because it is a momentous day. We pay all homage to our great freedom fighters and remember their glory towards our nation who fought for our freedom and sacrifices through their whole lives, through their struggles and sacrifices everything. గౌరవనీయులైన ప్రెసిడెంట్ సార్ గారికి, సెక్రటరీ సార్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఉపాధ్యాయులకు, ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు ముందుగా మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి తెలుపుతూ ముందుగా మీ అందరికీ మన స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు, టీచర్స్ ముందుగా మంచి ఉపన్యాసాలు చేసినారు. చాలా సంతోషం. మీకు తెలిసిన చాలా మంది దేశ నాయకులు మన దేశం కోసం, భావి తరాల కోసం స్వేచ్ఛ, సమానత్వం అనే వాటిని బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి 200 సంవత్సరాలు మన భారతీయులు ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు గురి చేసి ఉన్నారు. అటువంటి బానిసత్వం నుండి ఎందరో నాయకులు మనకు తెలుసు. గాంధీ, నెహ్రూ, పటేల్ వంటి వాళ్ళ గురించి. కానీ వాళ్ళ నిజ జీవితంలో ఎన్నో త్యాగాలకు వాళ్ళ ఆస్తిలు, వాళ్ళ ఎంతో లండన్, దక్షిణాఫ్రికా అటువంటి దేశాలలో వాళ్ళ చదువు కొనసాగించి రచించిన జాతీయ జెండాని ఆలపించి మన దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఔన్నత్యాన్ని ఉపన్యాసం ద్వారా తెలియజేశారు. నాకు ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా ఒక ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Guest of honor, Janab Sattar Sahib sir, our ex-president, present president sir, secretary sir, treasurer sir, vice president sir, and our correspondent sir, my dear teachers and students, Assalamu alaikum. Happy Independence Day to you all. Getting tired? Are you all getting tired? Feeling hungry? Please have some patience because we have great people to listen, right? All the little girls, the little birds who are sitting out, please maintain silence, right? For more half an hour more, because the great people are sitting here. We have to listen. You have to listen, isn't it? You are looking marvelous with a little flag in your hands. It shows your love towards the country, isn't it? Don't you love your country? What's the name of our country? India. Very good. We are? India. We are? India. Very good. And as Indian, what we have to do? What we have to do? We must. Shall we sing? Shall we sing? Right, sing with me. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today's program has been stupendously, marvelously great. I congratulate the faculty members who trained and prepared the students for this speaker. And particularly, I should make a mention of the college students who took part in this event. They have expressed their desire to be a part and parcel of this Independence Day. I congratulate them and I congratulate the principal for training them. Having said this, praised our positive angles, let us see some negative angles also. We have been persistently trying for discipline in our school and college, and it is unfortunate that the correspondent has to say twice or thrice to keep silent. I think this is one of the major negative points which the faculty members, the principal and the headmistress should look after, and that this way discipline is maintained in this one. Having spoken about nearly about 20 people have spoken about Independence Day, and I don't think there is anything left for me to do. Dr. Abul Kalam Azad has been a great freedom fighter. We should always remember him, along with Mahatma Gandhi Sahab, Jawaharlal Nehru Sahab, Rajgopal Sahab. I congratulate all the people and thank you for being here in our now. Warahmatullahi wabarakatuh. बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि आपकी कमेटी के लोगों ने मुझको बुलाकर यहाँ मेरा बचपना याद दिला दिया और मैं बहुत अच्छी तरह से गुजरा। ऐसे मैं छोटी सी नसीहत देता हूँ आपको, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ये बात यह है कि आप लोग जो भी इल्म सीखते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब तक आप अमल न करें आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए आप इल्म को अमल से जोड़ना चाहिए और उस पर जो भी इल्म सीखते हैं उस पर अमल करना चाहिए। बस छोटी सी मैसेज करके मैं अपने जगह जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज के इस शानदार जश्न यौम आज़ादी पर मैं अपने आप को यहाँ डायस पर तशरीफ फरमा तमाम अहबाब को, इस स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा को
सपोर्टिंग स्टाफ को और लास्ट बट नॉट लीस्ट तमाम तालिबात को LKG से लेकर इंटरमीडिएट तक दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोग्राम शुरू हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो रहा है। इस 1.5 घंटे के दौरान जो परफॉर्मेंस रहा, जो तस्वीरें रही, ये सब किसने की? आप बताइए किसने की? अब तक स्टूडेंट्स ने की। तो 1.5 घंटा स्टूडेंट्स की तकरीरों को और परफॉर्मेंसेस को हम सब ने सुना। तो अब हमारी जब बारी आई तो 10-15 मिनट आप हमको सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। पहली बात तो 1.5 घंटे के आइए, आधा घंटा या 15 या 10 मिनट उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम पीरियड है। ये और बात है कि शुरू होकर काफी देर हो गई, इसलिए आप में थोड़ी सी बेचैनी नजर आई। यहाँ हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब शेख आलम अरशद साहब तशरीफ फरमा हैं। हमारे इस कॉलेज के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर मजहर अली खान साहब हैं। मेहमान खुसूसी जाफर हुसैन साहब हैं और सेक्रेटरी मेरे दोस्त जनाब इसके कलीमतन साहब हैं। इसी तरह मेरे एक और ख़ास दोस्त यासिन बादशाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहब और अजीजम करस्पॉन्डेंट जिलाम सब तशरीफ फरमा है। मैं सबसे पहले उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शानदार जलसे का उन्होंने ये एहतमाम किया और इतने सारे तालिबात को जो है उन्होंने आज के दिन के लिए तैयार किया। इसमें काफी वक्त लगता है। मेरा ताल्लुक भी इसी कॉलेज से है, छोटे या बड़े। पढ़ने के बाद पढ़ाने का मौका मिला है, चाहे असातिज़ा हो या तालिबात हो या तलबा हो। किसी प्रोग्राम के लिए उनको तैयार करना आसान नहीं होता। मैं सबसे पहले उस छोटी लड़की आयत मुबीन के लिए चाहता हूं कि आप सब जोरदार तालियां दें। अच्छे अच्छे तजुर्बाकार लोग जब यहाँ स्टेज पर आते हैं तो जो कहना चाहते हैं उनमें से कुछ बातें भूल जाते हैं और शेर सुनाना हो तो और जो है हालत बहुत बदली हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इतने शानदार बेहतरीन अशार इस छोटी सी बच्ची ने जिस अंदाज में और बेबाकी से सुनाए हैं, उसके लिए मैं लड़की को और असातिज़ा को, उनके वालिदैन को, सबको जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल सही हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि पूरे आज के प्रोग्राम के जो है हाईलाइट जो है ये आयत मुबीन है बच्ची। इसी तरह जरा अपने हाथों में तैयार रखिए। आप नाश्ता वाश्ता करके आए होंगे, हाँ, तो ताकत होगी, अभी कमजोर नहीं हुए होंगे। तो उसके बाद ये एंकरिंग जिन्होंने की है, ये 2 लड़कियां बहुत ही शानदार एंकरिंग रही है उनकी शुरू से आखिर तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद सारी लड़कियों ने जो तकरीरें की और हुब्बुल वतनी के तराने जिन्होंने, नगमे जिन्होंने पेश किए, उनके लिए भी ये जोरदार तालियां। अब अगर एक और बार तालियां नहीं बुलाएंगे आपकी मौलिमात के लिए तो मुझसे खफा हो जाएंगी, उनके लिए भी बुलाएंगी।
और इसके साथ साथ इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने इतना शानदार जो है स्कूल और मदरसा यहाँ कायम किया, आपके लिए एक बेहतरीन माहौल जो यहाँ पैदा किया, खासकर हमारे कौम की लड़कियों के लिए एक महफूज जगह और बेहतरीन तालीम का इंतजाम किया। खासतौर पर मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा पौधा था यहाँ जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से शुरू किया गया था, जिनमें हमारे शेख खादा बादशाह साहब मोहतरम का और डॉक्टर मोहम्मद अज़ीज़ुल्लाह साहब का, रफीक अहमद साहब, अजीज साहब और बहुत से नाम हैं। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत अहम किरदार रहा है। और उसके बाद जीलान, आप जानते हैं कि सुल्तान ने अपनी मुलाजमत भी छोड़ दी इसके लिए। हमारे यासीन बादशाह साहब हैं, हमारे कलीमुद्दीन साहब हैं, जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, सारे लोग, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, लेकिन काफी लोग हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है कि ये इतना बड़ा शानदार जो है एक इंस्टीट्यूशन यहाँ आज खड़ा है। यहाँ आप तालीम हासिल कर रहे हैं और मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका मिला है। मैं इसके लिए सुल्तान और हमारे कलीमुद्दीन साहब, यासीन बादशाह साहब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के एक यादगार यौम आज़ादी के जलसे का मुझे भी हिस्सा बनाया। यौम इक़बाल के मौके पर भी इन्होंने मुझे यहाँ मदद किया था, लेकिन मैं नहीं आ सका। और इत्तेफाक देखिए कि आज भी मद्रास में एक प्रोग्राम है शाम 4 बजे, उसमें मुझे शरीक होना था, रिजर्वेशन भी कराया था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये मुझे मेरे दिल में गवारा नहीं किया। कि मैं दूसरी मरतबा जितने हमारे शहर के बड़े इदारे के दावतनामे को इनकार करूं, मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया। आप जानते हैं कि हमारा जो तिरंगा शानदार हर जगह आज लहरा रहा है, उसके जो 3 रंग हैं, साफरान रंग जो है वो हमारी ताकत और बहादुरी की अलामत है, और इसका जो सफेद रंग है वो अमन और सच्चाई की अलामत है। तो जो सब्ज रंग है वो इसकी जरखेजी, इसकी तरक्की और इसकी नेकी की अलामत है। और इसमें जो अशोक चक्र है वो कांस्टेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी हरकत और उसके साथ साथ जो है तरक्की, आगे बढ़ना। जैसा कि हमारे मेहमान खुसूसी ने कहा, तालीम हासिल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको अमल में लाना, उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। हमारे उर्दू के बहुत बड़े शायर जिनका नगमा अभी अभी मोहतरमा हसीना बेगम ने शुरू किया और आप सब ने मिलकर गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उनका एक और शेर है अमल के बारे में कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगे और ना ही हमारे जन्नत और दोज़ख के फैसले का दारोमदार भी हमारे अमाल पर है। सिर्फ फराइज़ की अदायगी काफी नहीं है, हुकूक अल्लाह की अदायगी काफी नहीं है, हुकूकुल इबाद और हमारे अमाल, ये सब कुछ जो है हमें जन्नत का मुस्तहिक बनाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखें।
हमारे हिंदुस्तान की पहचान के लिए हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र है उसमें जो लकीरें हैं वो जो है काफी, एक एक लकीर का जो है एक माना निकलता है। आप इस पर गौर करेंगे। हमारे हिंदुस्तान की पहचान रहम है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान अपनाइयत है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान मोहब्बत है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान वतन परस्ती भी है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान जो है हमारी ताकत, हमारी हिम्मत है। इस तरह बहुत सी खूबियां और खुसूसियात जो हम यहाँ हम हिंदुस्तानियों में देखते हैं वो सब के सब गोया के उस अशोक चक्र में जो लकीरें हैं उस तरफ उसका इशारा करती है। आजादी बहुत बड़ी नेमत है। आप बच्चे हैं, आपको मालूम है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए अगर आपकी वालिदा या वालिद साहब कमरे में बंद कर दें, 1 घंटा आपको बाहर जाने ना दें, खेलने ना दें, आपकी मर्जी से कुछ करने ना दें, तो आप पर क्या गुजरेगी? आप बर्दाश्त कर सकेंगे? बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर एक गैर कौम दूसरे मुल्क से आकर 200 साल यहाँ हुकूमत करना, मनमानी करना, जुल्म ढाना, सितम करना, पाबंदियां लगाना, और वो पाबंदियां हमारे अपने मुल्क पर, हमारी अपनी जमीन पर, हम पर, हमारी कौम पर। तो उस वक्त के लोगों ने जो ये मुसीबतें उठाई, तकलीफें उठाई, कुर्बानियां दी, बर्दाश्त किया और मुस्तकिल तौर पर लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये कोई मामूली बात नहीं, इसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो उन सारे लोगों का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। उनको एक यौम आजादी के मौके पर ही नहीं बल्कि हमेशा हमें उनको याद रखना चाहिए। और आमतौर पर कॉलेजों में और हमारे अपनी कौम के नौजवानों में ये जो मशहूर हैं जंग आजादी के, उन लोगों को ही जानते हैं, उन लोगों के ही नाम हमें याद है। कम से कम आप कहीं लिख कर रख लें उन लोगों के नाम जिनका ताल्लुक हमारी कौम से है, हमारी मिल्लत से है, मुसलमान रहे हैं। कई लोग अबुल कलाम आजाद के अलावा हम एक अबुल कलाम आजाद को याद रखते हैं। बेशक अबुल कलाम आजाद जो हमारे पहले वज़ीर तालीम और जंग आजादी के मुजाहिद हैं, उनके साथ साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, ये सब नाम हम बार बार सुन चुके हैं, बार बार सुनते हैं। क्या इनका ही रोल रहा है? सैकड़ों लोग, आम लोग, अवाम में न जाने कितने लोग अपनी उन्होंने जान दे दी हमारे हिंदुस्तान की आजादी की। शाह वलीउल्लाह देहलवी हैं, फजल हक खैर आबादी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, और कई नाम है, बहुत से नाम है, बहुत से लोगों ने, जिनमें कई शहीद हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, जान दी थी मुल्क के लिए। ऐसे कई नाम है। हमको चाहिए कि उन लोगों को भी हम याद रखें, उनके नामों से हम वाकिफियत हासिल करें। किसी के कहने पर अब जो हालात हैं हमारे सामने, उनके पेश नजर भी इन लोगों के बराबर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको जो है हमको याद रखना है। और जो लोग नहीं जानते, हमारे अपनी कौम के लोग और दूसरी कौम के लोग जो ये नहीं जानते कि इनके अलावा हमारे मुसलमानों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी और अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इसको हमें याद रखना चाहिए। ये दिन खास तौर पर आज के हालात में इसलिए भी है। लेकिन एक बात है कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में कुफ्र को मायूसी को कुफ्र कहा गया। हालात कुछ भी हो, हमको मायूस नहीं होना चाहिए।
घर में भी हम फैमिली में देखते हैं कि खुशी के साथ साथ गम के मौके भी आते हैं, आजमाइशें भी होती हैं, नाइत्तेफाकी भी होती है, लेकिन हम एडजस्ट करके आगे बढ़ते रहते हैं। उसी तरह से ये जो हालात हैं अब हम देख रहे हैं, उसका एहसास बड़ों में ज्यादा है, छोटों में थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ों से सुनते रहते हैं। इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। 77 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं ना, तो पिछले 10 वर्षों को छोड़कर 67 इयर्स जो इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, उन 67 इयर्स में हमको इतना ज्यादा परेशान तो होना नहीं पड़ा ना, जो पिछले 10 साल में हम परेशान हैं। तो वो अच्छे दिन, वो इत्मीनान बख्श दिन, वो फिर सुकून दिनों को याद कीजिए। कभी कभी हम परेशान होते हैं तो कुछ अच्छी यादों को जो है हमारे जहन में लाकर हम तसल्ली महसूस करते हैं, खुश होते हैं। तो 10 साल भी क्या है, आए हैं, गुजर जाएंगे। अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए, हमारे रवैये में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हमारी मेहनत और तालीम, इल्म जो है हर ताले की चाबी है। आप इल्म हासिल कर रहे हैं और इस मैदान में, इस रास्ते पर आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हमारे कौम में भी पहले लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए तालीम के बारे में अलग ख्याल था। लड़की को बहुत कम स्कूल तक पढ़िए, इंटर तक पढ़िए, काफी है, आगे और तालीम देने की जरूरत नहीं है, सहूलतें भी नहीं थी। और जो माली तौर पर पसमानदा है, बैकवर्ड है, उनके लिए और मुश्किलें थी। लेकिन आज कई मुखियर हजरात, साहिब माल, साहिब हैसियत लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे लड़कों लड़कियों को भी हमारे कौम की तालीम देने के इंतजाम कर रहे हैं, माली इमदाद कर रहे हैं। तो आपका जो मकसद है, आप में जो कुछ बनना चाहती हैं, डिग्री तक तालीम हासिल करना है, प्रोफेशनल कोर्सेस में इंजीनियरिंग करना है या मेडिसिन करना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, फार्मेसी कोर्सेस करना है, पूरा मैदान जो है आपके सामने, पूरा मैदान है। आपके वालिदैन भी, पेरेंट्स भी आपकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करने के मौके पर हम करें। तो ये ऐसा मौका है, इसको दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए आप। और तालीम के सिलसिले में बगैर तालीम के आज भी सर्वे ये बताता है कि बैकवर्ड जो है, एजुकेशनली बैकवर्डनेस हमारी कौम में ही ज्यादा। हालांकि पिछले कई वर्षों में हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अब भी हम पीछे हैं। अब उन कौमों को देखिए जो ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जिन कौमों ने तरक्की की है, उनका एक बड़ा हथियार जो है इल्म है, उन्होंने तालीम हासिल की है, उन्होंने जो है कुछ कारनामे किए हैं। तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भूल रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारी अखलाकी कदरों को कमजोर कर दिया, हमारे अखलाकियात पर बहुत ज्यादा वार किया है। हमारे अंदर जो अखलाक है, बड़ों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, वालिदैन के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। एक जमाना था कि हम हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब से के आगे टहलकर 5 मिनट बात ही नहीं कर सकते। ये मोहब्बत भी थी, ये डर भी था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाद घरों में वालिद साहब बैठे हैं, बेटा है, पता नहीं बेटियां भी ऐसा करती हैं कि नहीं करती हैं। बेटों को तो हमने देखा है कि कुर्सी पर बैठे हैं, टी पाई पर अपने पाँव जो है फैला कर बैठे हैं, ये माहौल है। और घर में देखिए तो नाश्ता करके, खाना खा के, दोपहर के वक्त कभी बैठे हैं, 4 कोने हैं, सोफा है, क्या क्या है, हर जगह हर एक जो है सेलफोन लेकर बैठा है, अपना अपना प्रोग्राम देख रहा है।
टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना, टेक्नोलॉजी से काम लेना बुरा नहीं है, जरूर लीजिए, लेना भी चाहिए, जमाने के साथ साथ चलना चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत भी जरूरी है। ये असातिज़ा आपकी तरबियत करेंगे, वालिदैन आपकी तरबियत करेंगे, बड़े जो है आपकी तरबियत करेंगे, उस पर गौर कीजिए और तरबियत की तालीम के साथ साथ तरबियत भी लीजिए और उस माहौल से, तहजीब से बचने की कोशिश कीजिए जो हमको मजहबी एतबार से, अच्छाई के एतबार से हमको दूर कर रहा है। तो बहरकैफ मैंने 10-15 मिनट कहे थे तो आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि 10-15 मिनट तो हो गए, साथ जो है और आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्र के लिहाज से स्कूल और कॉलेज की जो लड़कियां हैं, हो सकता है कुछ बातें उनके लिए ज्यादा हो या कुछ बड़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बातें इस वक्त आपके समझ में ना आई हो तो आगे चलकर समझ में आएंगी, या आपके जो असातिज़ा या जो मुअल्लिमात हैं, टीचर्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल हमको एक मुकम्मल इंसान बनना है, एक अच्छा मुसलमान बनना है और एक अच्छा हिंदुस्तानी बनना है। एक अच्छा हिंदुस्तानी बनेंगे तो समाज भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी और मुल्क की तरक्की में हमारा किरदार रहेगा। हमारी पहचान बनाना, वालिद साहब के नाम से जाने जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आना चाहिए जब आप खुद अपने नाम से पहचाने जाए। आयत नबी का नाम आ जाया, अच्छे इरशाद सुनाए, ये उस लड़की की आज के दिन बहुत बड़ी पहचान है। तो आप में से हर एक की जिंदगी में एक ऐसा दिन आना चाहिए कि आप किसी न किसी एक खास बात की वजह से पहचाने जाएं। ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम से उनके वालिदैन, उनके दादा परदादा और उनके पूरे खानदान को लोग पहचानते हैं। कई लोग हैं यहाँ जो खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके वालिदैन ने भी की होगी, इनके वालिदैन ने भी खिदमत के परचम लहराए होंगे, लेकिन सबके वालिदैन ने ऐसा नहीं किया। आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये अब इनकी पहचान है। जीवन साहब को, सुल्तान साहब को, उनके वालिद या दादा को जो लोग भूल गए हैं, आप सुल्तान बताएंगे, सुल्तान कौन जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गवर्नमेंट की जॉब की कुर्बानी दी, कौन है? जीवन साहब, उनके वालिद, उनके बाप का नाम ये है, उनके दादा का नाम है, ये उनकी पहचान है, ये इंफरादियत है, इंडिविजुअलिटी है। तो जो लोग संजीदगी से इस पर गौर करेंगे, समझेंगे, सीरियस इस बात को लेंगे, वो एक ना एक दिन जो है अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। मैं चाहता हूं कि इस दिन का सबसे बड़ा पैगाम, इस खुशगवार मौके पर, यादगार और बेहतरीन एक आलिशान जश्न के मौके पर मेरा पैगाम यही है कि आप में से हर एक किसी न किसी मैदान में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, जो सिर्फ आपकी नहीं, आपके खानदान की, आपके जो है शहर की और आपके जो है इस मुल्क हिंदुस्तान की पहचान बन जाए, जैसा कि कई लोगों ने बनाई। मैं आखिर में 2 शेर कहकर जो है अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आज सारे जहां से अच्छा में इकबाल का एक शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस बात को समझ जाइए, जो हालात है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हालात बदलेंगे और ये नए नहीं है हालात। हम 70 साल के बाद कुछ देकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने, हमारे कौम के
लोगों ने इससे बड़े बड़े जो है आजमाइशों को, बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना किया है। आज लोग हमारे दुश्मन नहीं है। आज जो है लोग हमारे लिए जो है रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं कर रहे हैं। सदियों रहा है, वर्षों रहा है दुश्मन दौरे जमाना है। सदियों से हमारी दुश्मनी को खुला हुआ है, हमारी दुश्मनी करते रहे। और आखिर में जुगन मुरादाबादी का एक शेर हमेशा याद रखिए, हमेशा यही होगा, ताहश्र क़यामत तक यही होगा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जनाब जाफर हुसैन साहब का और डॉक्टर सफर साहब का। और शांतोशी के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब और इंजीनियर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाफर हुसैन साहब और डॉक्टर सफर साहब। వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారములు. నేను ఒక 2 చిన్న విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈరోజు మనమందరం కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎందరో వీరులు మన కోసం ఇలా మనం స్వేచ్ఛగా కూర్చున్నాము, స్వేచ్ఛగా మనమంతా కూడా బాగా చదువుకుంటున్నాము అంటే దానికి కారణము ఎందరో వీరులు. ఎందరో వీళ్ళ త్యాగఫలం మన నేటి స్వేచ్ఛకే మూలఫలం అన్నారు. అలాగే వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఒకసారి తెలియజేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మన దేశంలో స్వాతంత్రం కోసం కష్టపడే వాళ్ళే కాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో మనకు కరోనా కూడా 2019లో 2020లో కరోనా కూడా వచ్చింది. ఆ టైంలో కూడా ఎందరో డాక్టర్స్ అయితేనేమి, పోలీసులు అయితేనేమి, ఎంతమందో స్వచ్ఛంద సేవకులు అయితేనేమి అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి మనము మన పేరెంట్స్ ని మనం దగ్గరికి తీసుకోలేని టైంలో ఎక్కడికో దూరంగా పెడుతున్నారు మనల్ని. అలాంటప్పుడు మనకి ఎందరో సేవ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు మనము ఒక్కసారి సెల్యూట్ చెప్పాలి. తర్వాత నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. పిల్లలు మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మన దగ్గర 2 వీక్నెస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మనం చదివేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయము, శ్రద్ధ చూపించం. తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసి పోస్ట్పోన్మెంట్ ఉంది. ఈరోజు చదువుతాంలే, రేపు చదువుతాంలే, మన్నాడు చదువుతాంలే ఇలా అనుకుంటా ఉంటారు. మనకు ఒక కవి చెప్తున్నారు హిందీలో. ఏం చెప్పారంటే, కల్ కా కామ్ ఆజ్ కర్నా చాహియే, ఆజ్ కా కామ్ అభి కర్నా చాహియే, క్షణ్ మే ప్రళయ హో జాయే తో బహుత్ కరేగా ఖాక్ బన్నారు. అంటే ఏ రోజు పని ఆ రోజే చేయాలి. కల్ కా కామ్ ఆజ్ కర్నా చాహియే, ఆజ్ కా కామ్ అభి కర్నా చాహియే. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ వచ్చింది చదువుతాం, మీరే చదవకుంటే వాళ్ళే ఎఫ్ఎ2 చదువుతాం, తర్వాత ఎఫ్ఎ3 చదువుతాం, ఎస్ఏ1 చదువుతాం, అలా అనుకుంటూ పోతుంటే ఆ టైంలో మనకి అది అలాగే ఇంత అయిపోతుంది. మనం చదివే చదువు చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఏ క్షణమే ప్రళయం అవుతాయి. అప్పుడు మనకి ఏదైనా ఫీవర్ కావచ్చు, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేము, చదవలేము. ఇంకోటి కాబట్టి ఎప్పుడు పని అప్పుడు మనము ఏ రోజు పని ఆ రోజే చేయాలి. ఇంకొక విషయం ఏమంటే, తర్వాత అంటే మాలాతో కర్మే ఫిరాయి, జీప్ ఫిరాయి, మిల్కా మాహి, మనవతో బస్సై ఫిరాయి, ఎవరితో చిన్నగా నాహి అన్నారు. ఎందుకంటే మనము ఏదైనా ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు ఒక మాయ చేతిలో పెట్టుకుంటాం. మనం అల్లాని కానీ ఈశ్వరుని కానీ ఎవరినో కానీ మనం ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మన మనసు ఎలా ఉంటుంది, 10 విధాలుగా ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. మన నాలుక మాత్రం జీపు ఫిరాయి, మిల్కా మాహి, మన నాలుక మాత్రం, మన తండ్రి మాత్రం ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటుంది. మన మనసు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది. మీరు కూడా అలాగే చదివేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, హెచ్ఎం కూడా చూస్తున్నామో, లేకుంటే సార్
కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా ఎక్కడెక్కడ చదువుతా అంటారు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడే చదువుతారు. అది మంచి పద్ధతే కాదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలా చదవాలి? కాన్సన్ట్రేషన్ తో చదవాలి. ఇంకోటి మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలంటే మనలో ఒక విశ్వాసం ఉండాలా. हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. जय हिंद. Management has decided to give the appreciation prizes. I am going to announce the name of the students. First of all, 2022 to 23 in 10th class toppers. I am announce the prizes. Syed Aisha Samrin, 95% in SSC 2022-23. Get ready, D. Mehat Khanam. Now, our Honorable Chief Guest distribute the prizes. B. Mehat Khanam, 94%. With a big hand, Sarah Mariana Zilan, 91%. With a big hand. Next, subject wise toppers is Arshia Tasneem, Urdu subject topper, yes, Arshia Tasneem. She got 100 to 99 marks. Next, B. Mehat Khanam, Telugu subject, she got 98 marks. 100 to 99 marks. Next, yes, Mariam, in English subject, she got 98 marks. Next, Maths, Syed Gausia Fatima, she got 99 marks. Next, Science subject, D. Mehat Khanam, she got 96 marks. Next, Nazma Sultana, she got social 97 marks. Next is Arshia Tasneem, 96 marks in biology. Next, yes, Mariam. Okay. Yes, Mariam. Okay. Thank you, ma'am. Next, in our school, up to social prizes in 10th class. Gina Alta. Next, Sheikh Bibi Aisha in 10th class. Bibi Aisha. हमारे प्रेसिडेंट साहब एक छोटा सा गिफ्ट दिए हैं 100 रुपीज. India,
Sitaram